Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss next topic, that is resolution of a vector and rectangular components of a vector in a plane. So a unit second ਦਾ chapter 4th ਦਾ next topic ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ resolution of vector ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ definition ਦੇਖੋ, the process of splitting of vector into or more components, ਇੱਕ ਹੀ vector ਦਾ number of parts ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। Let us suppose ਸਾਡੇ को आ पूरा वैक्टर आ, suppose this is P वैक्टर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। let us suppose ਸਾਡੇ को ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ resolution of vector। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ resolution ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, and the parts so obtained, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਲੇ ਆ are called components of a vector। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, components of a vector। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ components ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, rectangular component of a vector। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, when a vector is resolved into a component and the components are at right angle। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, to each other, then such components are called rectangular component of vectors। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ rectangular component ਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, let us consider a vector a vector। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ which is O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ठीक है। सो रिप्रजेंटेड बाय OP इन एक्स वाई प्लेन। सो असी सपोज किया कि दिस इज एक्स प्लेन एंड दिस इज वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन दे विच ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स। सो हुण ध्यान दो, असी दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करन लगे हां। किस तरह, इत्थे रखो एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ कर दो, देन इधर रखो और दूसरा परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ कर दो। डन। सो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। सो आ की है थोड़ा PN और इधर इहदा नाम रख दो M। सो ये बन गया PM। सो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, द टू कंपोनेंट्स AX। सो आ थोड़ा केड़ा कंपोनेंट बन जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ तो AX, ए दे पैर विच X। ए कित्थों आया, आ जो कंपोनेंट आ A एक्स एक्सिस दे अलोंग आ, दैट इज वाई AX। डन। सिमिलरली आ थोड़ा केड़ा कंपोनेंट होएगा, ए वाई कंपोनेंट। सो ये उत्ते वैक्टर्स जरूर पा देना क्योंकि असी वैक्टर्स की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन, जो साडा मेन आर्टिकल स्टार्ट होएगा, सो इस तरह की थोड़ी एक डायग्राम बन जाएगी। सब तो पहला तुसी लिखोगे इन ट्रायंगल OPN। सो देखो OPN, असी आ वाली ट्रायंगल चूज करन लगे हाँ, इन ट्रायंगल OPN। OPN ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल लॉ किस तरह अप्लाई करांगे, जो सेम डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, सेम ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ऐड करांगे O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ N तक, then N ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P तक, बोथ आ रहे ना सेम ऑर्डर। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ON ਵੈਕਟਰ प्लस NP ਵੈਕਟਰ इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ਕੀ ਆ, टेल दे नाल टेल एंड हैड दे नाल हैड विच इज OP वैक्टर। सो असी लिख दिता OP वैक्टर। डन। नो वट इज द वैल्यू ऑफ OP। OP की वैल्यू कितनी आ, A वैक्टर। सो असी पुट किया A वैक्टर इज इक्वल्स टू वट इज ON, AX वैक्टर, AX वैक्टर प्लस वट इज NP। N तो लैके P तक सेम उन्ना ही आ जिन्नी कि O तो लैके M तक आ। सो दैट इज वाई असी इत्थे लिख सकते हैं AY वैक्टर। हुण इत्थे तुसीं लिखोगे वेयर AX and AY are the two rectangular components of A vector। Since
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायरैक्शन ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ डायरैक्शन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, एक्स एक्सिस आ, वाई एक्सिस आ और जेड एक्सिस आ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ एक्स एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ दैट इज़ आई कैप, वाई एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ जे कैप और जेड एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ के कैप। इट मीनस ਸਾਡਾ ਇਸ डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ डायरैक्शन ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ आई कैप और वाई एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, जे कैप। सो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ जे कैप। डन। सो आ डायग्राम जो मैं रब कर रही है नहीं तुसी बनानी है, थोड़े समझाने वास्ते सी। ठीक है, आई और जे कैप दो आ। इट मीनस अगर असी वैक्टर फॉर्म दे विच नहीं लिखना चाहते, इनू यूनिट की फॉर्म दे विच मतलब डायरैक्शन की फॉर्म दे विच लिखना चाहते हैं, वैक्टर हट जाएगा ये उपरों, दैन यूनिट लग जाएगा। यूनिट की है तुहाडा आई कैप। ए एक्स के अलोंग किहड़ी डायरैक्शन आ, आई कैप। याद रखना जदों भी वैक्टर्स हट जाएगा तो डायरैक्शन आ जाएगी। ठीक है, या तुसी डायरैक्शन मैंशन कर सकते हैं या तुसी वैक्टर्स मैंशन कर सकते हैं। डन। सिमिलरली तुसी हुण वाई दी फॉर्म दे नाल भी लिखो ए वाई वैक्टर। हुण तुसी वैक्टर हटाना चाहते हैं, वैक्टर हटा दिता, नाल आ जाएगा यूनिट कैप। यूनिट कैप कौन है इहदा, जे कैप। सो इत्थे लिख दिता जे कैप। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट ए इज इक्वल्स टू, ए दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। डन। सो ए एक्स एंड ए वाई आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर। डन। सो इस तरह करके असी इनू डायरैक्शन की फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। नैक्सट असी करन लगे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। हुण असी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो असी की है, एक छोटी जी ट्रायंगल चूज की ओ पी एन। सो एनिक ट्रायंगल चूज की। एनिक ट्रायंगल दे विच असी की कीता, इन ट्रायंगल ओ पी एन। एक बारी असी कॉज यूज़ करांगे, एक बारी असी साइन यूज़ करांगे। सो तुहाडी मर्जी, तुसी जो मर्जी पहला लिख सकते हैं। फर्स्ट वन असी लिख लैंदे आ कॉस थीटा। नाउ वट इज़ कॉस थीटा, तुहानू फॉर्मूला पता ही आ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो सानू कॉस चाहिए। कॉस मीनस बेस डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज। सो आ गया बेस डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज। हुण ध्यान दो, बेस तुहाडा की है इस डायग्राम दे विच ओ तो लैके एन तक। सो असीं लिख दिता ओ तो लैके एन तक। वट इज़ हाईपोटेन्यूज, हाईपोटेन्यूज की आ ओ तो लैके पी तक। सो असीं लिख दिता ओ तो लैके पी तक। नाउ वट इज़ ओ एन, ए एक्स वैक्टर डिवाइडेड बाय वट इज़ ओ पी, ए वैक्टर। सो ए वैक्टर आ गया। हुण ए वैक्टर नू कॉस दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो ध्यान नाल देखो, पहला साडी आ टर्म बन जाएगी ए वैक्टर। सो इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कीता। सो तुहाडी ए एक्स वैक्टर दा आंसर कितना आ जाएगा, ए वैक्टर कॉस थीटा। डन। सो अगर तुसी इनू वैक्टर की फॉर्म दे विच लिखना चाहते वैक्टर च लिख लो, अगर सिंपल लिखना चाहते तो सिंपल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हुण तुसी साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन की वैल्यू निकालने लिए भी तुहानू सेम ट्रायंगल चूज करना पएगा। सो की आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज। नाउ वट इज़ परपेंडिकुलर, पी एन एंड हाईपोटेन्यूज तुहाडा की आ ओ पी। सो ओ पी। नाउ साइन थीटा तुहाडा कितना आ जाएगा, वट इज़ पी एन, पी तो लैके एन तक की वैल्यू तुहाडी की आ ए वाई डिवाइडेड बाय ओ तो लैके पी तक की वैल्यू कितनी आ, ए वैक्टर। नाउ ए नू इहदे नाल मल्टीप्लाई कीता, वी गेट ए वाई वैक्टर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। डन। सो इनू इक्वेशन नंबर 2 लिख दो और इनू इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है जी। हुण तुसी अगे की लिखना है, एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड स्क्वेयर बोथ साइड, या सिंपल लिख सकते हैं स्क्वेयर एंड एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वेयर किया, सो साडे को कितना आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, सो स्क्वेयर करो फर्स्ट इक्वेशन का, इत्थे की आ जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है। सो साडा की आ जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस
सिमिलरली ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ a ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ, ਸੋ ਟੇਕ ਕਾਮਨ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ? 1, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ a ਸਕੁਅਰ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? a ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ax ਸਕੁਅਰ प्लस ए वाई स्क्वेयर। स्क्वेयर हटा दो, दूसरी तरफ जाके बन जाएगा अंडर रूट, सो वी गेट अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। सो एक आंसर थोड़ा आ वाला आ जाएगा विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। डन। सो असी नैक्सट करन लगे ओहदी डायरैक्शन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई दे विच असी की करनी ओहदी डायरैक्शन भी फाइंड आउट करनी, मतलब थीटा फाइंड आउट करना। हुण असीं की करांगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 बाय 1। सो इक्वेशन नंबर 2 तुहाडी की सीगी? आ रही तुहाडी इक्वेशन नंबर 2। सो ये लिख लैंदे आ पहला ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी की सी ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ए दे नाल ए कैंसल। हुण ध्यान रखना इधर ना ए दे नाल ए कैंसल नहीं होएगा, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि ये वाई आ और नीचे ए एक्स आ। इहदा मतलब ए वाई ओवर ए एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? वट इज साइन ओवर कॉस? टैन थीटा। हुण टैन नूं दूसरी तरफ ले जाओ, सो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा? tan inverse ay divided by ax। so this is your final answer। ध्यान रखना है तुसी इदा नहीं लिखना थीटा इज इक्वल्स टू ay डिवाइडेड बाय ax tan इनवर्स, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। जदों भी तुसी लिखते हो साइन थीटा की फॉर्म के विच लिखते, कदे थीटा साइन नहीं लिखते, ठीक है जी। सो आ भी उही चीज़ आ, tan थीटा या थीटा की वैल्यू ay ओवर ax है। इज दैट क्लियर? सो ए वाई ओवर ए एक्स बाद विच लिखना, टैन इनवर्स पहला लिखोगे। थैंक यू।